तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर, स्कूल पेपर है, मैं नाम नहीं लिखूंगा स्कूल का। ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, तो नंबर 1 आप जरा हेल्प करना मुझे। एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। कम ऑन गाइस। 12576 4052 इंटू अगर आप 9 करेंगे तो, सॉरी 9 क्यों करें, कितना रह जाएगा? बहुत ही अच्छा फिगर आने वाला है 420। 4052 420 से करे तो 9 0 272। अगर आपको ऐसा पता है, बहुत बार ये सम किया है, मैं जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहा हूं, राइट। 8 and 2 10, 7 and 1 8 and 4 272, तो 124 148, that is 124, that is 24 124, that is 24 into 5 124 24 has to be multiplied divided by 4, so your answer is 4, that is true। एक ट्रू लगाने में 2 मार्क उसने पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार मोबाइल भी बंद होता जाएगा। नंबर 2, एलसीएम ऑफ 96 and 404 is 9600, ट्रू और फॉल्स बताना है। 24 फोर्जा 24 मतलब 32 थ्रीजा 32 थ्रीजा 101 इंटू 2 स्क्वायर। अब आप लोग देखो 2 raised to 5 इंटू 3 इंटू 101, 96 इंटू 101, क्या आंसर आता है? ट्रू के फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? 960 सर, 9696 आंसर आता है, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ x square minus 9x plus 20, the roots are 5 and 4, is it true? तो okay, sir, x minus 5 and x minus 4 equal to 0, hence your x equal to 5 or x equal to 4, 8 true 8 false, तो ये true। कैलकुलेशन जितना फास्ट करो इतना अच्छा, बट डोंट मेक इट रॉन्ग। इफ 3 is one of the zeros of p of y, 3 is one of the zero of p of y, then y plus 3 is one of the factor, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, of p of y। Is it true or false? Let me check from your end first of all. Students, come on. Is it true or false? 3 is one of the zero of p of y, then y plus 3 is one of the factor of p of y. Nobody is writing anything on the wall. Nobody is writing anything on the wall. Someone wrote it and that is false. How can you say so? Sir, y plus 3 is one of the factors, so y equal to minus 3, hence 3 is not one of the zero, one of the zero is minus 3 is one of the zero। तो यहां पे आपके ट्रू एंड फॉल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5,
The pair of equation x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 are consistent or non-consistent. They wanted to ask whether it is consistent or non-consistent. Whether it is consistent or not consistent. What do you say? Question बराबर देख लेना पड़ेगा. Is it consistent or non-consistent? One can say it is consistent. Reason unique solution है. And unique solution हो और infinite solution हो तो consistent होता है. If it is a unique solution or infinite solution, it will be a consistent. Number 6. The roots of quadratic equation are dash. 6x square minus x minus 2 equal to 0. Roots of quadratic equations are dash. तो के क्या है? तो के 6 2s are 12. 12 के ऐसे फैक्टर minus 4x plus 3x minus 2 equal to 0. What is common? 2x common, 3x minus 2. If nothing is common, 3x minus 2. Then 3x minus 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x plus 1. Hence, what's your answer? X equal to 2 by 3 और x equal to minus half. तो यहां तक 6 क्वेश्चन हो गए हैं. नेक्स्ट के लिए तैयार रहो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7. तो नंबर 7. नंबर 7 में क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैल्यू ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x minus 2 plus 6 equal to 0, so that they have two equal roots. Two equal roots. Two equal roots. चलो देखते हैं. kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. राइट. इक्वल रूट्स मतलब क्या हुआ? डेल्टा. इक्वल रूट्स मतलब डेल्टा या तो डिस्क्रिमिनेंट सॉरी, या तो डी या तो दूसरा कौन सा वर्ड है मैं भूल गया बच्चों, बताओ प्लीज. आई हैव फॉरगॉटन बट व्हाट इज कॉमन? 4k कॉमन, k minus 6. So one answer is k equal to 0 and other is 6. तो दो आंसर पॉसिबल है. दिस इज टेक्सचुअल माय डियर स्टूडेंट्स. क्राइटेरियन बोलते हैं. यस, क्राइटेरियन. अच्छा वो याद दिला दिया है. नंबर 8. द डिस्क्रिमिनेंट of 3x square minus 2x plus 1 upon 3 equal to 0 is dash. Discriminant. Discriminant again d b square minus 4ac. तो चेक करते हैं. 3 3s are 9x square minus 6x plus 1 upon 3 equal to 0. आंख बंद करो, खोलो और बता दो कि ये डेल्टा आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 आएगा. राइट. परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या आएगा? 0. तो 36 minus 36 आंसर इज 0. ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाए तो डेल्टा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9. फॉर एन एपी 0.6 1 सॉरी 1.7 2.8 3.9. what is common difference? Common difference. तो 1.7 minus 0.6, your common difference is 1.1. Your common difference is 1.1. And number 10, dash term of AP 3, 8, 13, 18 is 78.
78. A is 3, D is 8, sorry 8 minus 3 5, I beg your pardon. राइट, आपको पूछा है डैश टर्म मतलब कि n, और आपका an कितना है 78. चलो देखते हैं. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 75 n माइनस 1 इंटू 5, 15, तो n आएगा 16 टर्म, बराबर है. इट इज 16 टर्म, राइट, दैट इज 78. नंबर 10 के बाद कंपैरेटिवली ये पेपर सिंपल है जो मॉर्निंग में किया इससे. राइट द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, राइट नंबर्स, और 1 मार्क में पूछा है, ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 3. यहां पे गड़बड़ करने का चांस है. वैसे मैं पहले आपको ओरल समझाऊंगा. 33 3 जा 99, तो 33 हुआ, बट इसमें 3 6 और 9 निकल जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है. 3 6 और 9 निकल जाएगा, तो 33 माइनस 3 आंसर आएगा पक्का कौन सा 30. बट मैं आपको बता दूं, पहला आएगा 12, देन विल कम 15, देन विल कम 18 डैश डैश डैश, लास्ट 3 से डिविजिबल वाला 99. A is 12, D is 3 and AN is 99. ये अगर आप डायरेक्ट भी 33 लिखो तो आंसर तो वो लोग दे देंगे, मतलब कि मार्क्स दे देंगे. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 99 12 माइनस 1 3, 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 29 n माइनस 1, तो n इक्वल टू 30. This all not a bad one. Next question, number 12. E and F are points on the side PQ and PR. E and F are the points lying on PQ and PR respectively of triangle PQR such that PE is 4, QE is 4.5, PF is 8, RF is 9. तो क्या EF is parallel to QR है? Converse of theorem 6.1. क्या पूछ रहे हो आप? तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन PR. ये 4, ये नीचे 4.5 मतलब के 9/2, इस तरफ भी 8/9, तो 4 2 8 upon 9 equal to 8 upon 9. When the ratios are equal, the lines are parallel, means EF is parallel to QR surely है, because 4.5 को आप क्या करेंगे 9/2 रख देंगे. yes, तो yes they are parallel, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं temporarily. And now the next question आपका जो देखने वाले हैं वो है 13. 24 तक हो जाए तो आगे देख लेंगे कुछ, और नहीं हुआ तो नहीं देखेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. And all the students tomorrow in the meeting first half I would like to take, खाली शायद एक ही हाफ लूं, इनडायरेक्ट नरेशन समझा के खत्म कर दूंगा. A ladder is placed against a wall. Textual. ये आपका ladder, ये wall. Ladder is placed against a wall such that foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and top reaches the window at 6 meter. You have to find the length of the ladder. Textual है. Length of the ladder. ये length है ladder की, ये आपकी wall की height है, right? तो पाइथागोरस से AC square equal to AB square plus BC square. You have got Pythagoras. 6 square plus 2.5 the whole square.
तो आपका 36 प्लस 42.25 का स्क्वायर रूट मैंने आपको सिखाया था 6.5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 6 7 है, जिसमें छोटा ले लो तो आपका आंसर 6.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द लेडर इज 6.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स कल डेफिनेटली ज्वाइन करना। इनडायरेक्ट के डाउट्स है या तो इनडायरेक्ट का मैं रूल समझा दूंगा वापस से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। Coordinate of the point, we divides the line segment joining A 4, -3 and B 8, 5 in the ratio of 3:1. Look, 3:1. In the ratio of 3:1. They are all textual sum, mind well. अंदर से 1 मार्क में से निकाले हैं। देखो, तो नाउ x के लिए ये 1 मार्क है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं। 1 into 4 upon 3 plus 1, 24 and 4 28 upon 4, आंसर 7। y देख लेते हैं 3 into 5 plus 1 into -3 upon 3 plus 1, 15 minus 3 12 by 4। your answer is 7,3 if I am not wrong। किसी ने किया? चेक करो भाई, चेक करो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। इन ट्रायंगल OPQ, in triangle OPQ, right angle at P, OP is 7, OQ minus PQ is 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू। देखो 2 मार्क के क्वेश्चन 1 मार्क में पूछते हैं। चलो ओके, OQ माइनस PQ इज 1, सो OQ इक्वल टू PQ प्लस 1, मतलब कि आपका ये हो गया PQ प्लस 1। ये तो आपको पता ही होगा 7, 24 एंड 25 आराम से आ ही जाता है ना, राइट। तो आपका आंसर 7/25 आना चाहिए, साइन क्यू पूछा है तो। बट सर सिस्टमेटिकली OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू PQ प्लस 1 द होल स्क्वायर, 49 प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 1, PQ स्क्वायर गया, ये हुआ 48, 2PQ हुआ, मतलब कि PQ आपका हो गया 24, ये आपका 24, तो 24 प्लस 1 ये हो गया 25, एंड साइन Q इज नथिंग अपोजिट, दैट इज OP अपॉन OQ, दैट इज 7/25, जो आपको ओरल बता दिया। इफ यू कैन डू इट एंड राइट इट, आई थिंक दे बाउंड टू गिव मार्क्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इवेल्युएट, ठीक है, 1 मार्क में साइन 30, tan 45 माइनस cosec 60। टाइम कम पड़े ऐसा कर देते हैं, sec 30 cos 60 है, सॉरी, एंड cot 45। एक्चुअली cos 60 लिखा है, बट मुझे डाउट है कि cosec आना चाहिए, वट एवर इट मे बी। अपना क्या है, जो है हाफ 1 और ये 2/√3, नीचे 2/√3 हाफ और ये 1, टेक्स्ट बुक का ही है। एलसीएम 2√3, इसके पास √3 नहीं, इसके पास दोनों नहीं, और इसके पास सिर्फ 2 नहीं। वाह। और यहां पे भी वही हालत है, 2 के पास 2 नहीं, 1 के पास √3 नहीं, और 1 के पास, ये 1 के पास दोनों नहीं। 3√3 माइनस 4, नीचे 3√3 प्लस 4, कॉन्जुगेट लेते हैं 3√3 माइनस 4 ऑन बोथ द साइड एंड ट्राई टू सी। सो पहले ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर करेंगे तो 27, 3√3 का स्क्वायर,
3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 रूट 3 और 4 का स्क्वायर करो तो 16. नीचे a प्लस b a माइनस b 27 माइनस 16. आई थिंक वेरी फेमस आंसर that can be asked for 2 marks and they ask for 1 mark. Wow. The next question अब blank से. Now, sorry. Question number 17. What is the line intersecting a circle at 2 points. ऑप्शन भी दिया है इन लोगों ने, टेंजेंट, सेकेंड, लाइन सेगमेंट एंड एंगल. बोलो बच्चों, what is the line intersecting the circle at 2 points is known as A tangent, B secant, C line segment and D angle. तो आंसर इज सेकेंड. और स्पेशल केस वाला भी करके जाना, ब्लूप्रिंट का पेपर है बोर्ड का. व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल? गुड क्वेश्चन. व्हाट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड इज टेंजेंट कॉल्ड? व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट कॉल्ड? तो इट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ contact. Number 19. If the perimeter of the area of circle numerically equal, find the radius. Wow. पेरीमीटर, सर्कमफरेंस और लेंथ एक ही होता है. इफ दे न्यूमेरिकली इक्वल, योर पाई, योर 1 r. सो व्हाट इज द r? ओके, r इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो कंपेयर टू दैट पेपर वी हैव सीन इन द मॉर्निंग, सम ऑफ दैट यू वर इन लाइव चैट, इससे ये पेपर थोड़ा सिंपल था. वो पेपर खास देखना, ये दोनों एक ही स्कूल के पेपर है, बराबर. एक प्री और एक पोस्ट. फिल्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. 2 cubes each of volume 64. ओहो, ये देखो 2 मार्क का क्वेश्चन, 13.1 का पहला ही क्वेश्चन है, आई थिंक सो. इसका कई लोगों को आंसर याद हो ना तो अच्छा रहता है. चलो, 2 क्यूब each of volume 64. तो L क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर. each of volume 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो आपकी लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, बराबर. ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो देखो, ये मैं हाइट ले लेता हूं 4 + 4 8. लेंथ है इसकी 4 और ब्रेथ है इसकी 4. और एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × LB + BH + LH. 2 × हाइट, लेंथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 8. तो बस आपका आंसर 16 + 32 + 32, 64 and 16, that is 80. आपका आंसर आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 13.2 का पहला सम है.
और वी आर ऑन 21 नाउ। 10 मिनट के अंदर बाकी के निपटाने हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. Cone standing on hemisphere. Radii being equal to 1. इसकी रेडियाई ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 है। Height of cone is equal to, write the radii. Equal to is radii, मतलब कि हाइट भी कितनी है 1। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम, ये दो मार्क में पूछ सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहां पे 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहां से h और यहां से 2r कॉमन, खास याद रखो इसको। नाउ नेक्स्ट 1/3 पाई इंटू 1, h मतलब के 1, r मतलब के 1, सभी 1 1, तो 1/3 पाई 1 plus 2 3 common, your answer is pi centimeter cube. It's a 2-mark question, very good question. But number 22, which of the following cannot be probability? Cannot be probability. चलो ऑप्शन देना पड़ेगा, तो 2/3 minus 1.5, 15% एंड 0.7। आपको ऑप्शन दिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बोलो बच्चों, विच वन, विच अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? जल्दी बोलो। जो माइनस वाला है, नेगेटिविटी चलती ही नहीं है। ऑप्शन 2 -1.5 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सर 15% मतलब 15/100 मतलब 0.15 होगा। 23, द फॉर्मूला ऑफ मीन, क्या है फॉर्मूला ऑफ मीन? तो कि सिग्मा fi xi अपॉन n, बराबर, और फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन में क्या आता है आपका? तो कि मीडियन में इन लोगों ने L प्लस n/2 माइनस CF इंटू C या तो H सिंबल जो भी यूज करे वो। यहां पे आपका एक एक मार्क वाला सभी क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, राइट? तो दैट वाज ए गुड क्वेश्चन। एक और टाइम बचा है तो जरा क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। एक स्पेशल क्वेश्चन है, इफ मिड पॉइंट ऑफ 2k sec square theta 0 and 0,2k tan square theta is x, y and x minus y equal to 9, then find k। मैं बोर्ड रब करूं तब तक दूसरे बच्चे ट्राई करें। इट्स अ जैम ऑफ ए क्वेश्चन, राइट? जब तक मैं आगे का बोर्ड रब करूं आप लोग इसको ट्राई करें। मेरे हिसाब से आंसर 9 ही है और आपके हिसाब से क्या आता है पता नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है,
जो it is not a cup of tea for all, but it is cup of tea for some people. चलो देखते हैं. मिड पॉइंट इज x, y. तो 2k sec square थीटा प्लस 0/2. मैंने आपको आंसर थोड़ा थोड़ा बता दिया, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही बता दिया. 2k tan square थीटा बाई 2. जरा ध्यान से देखना, देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, बराबर. तो 2k sec square थीटा बाई 2, जीरो का कोई वैल्यू नहीं. 2k tan square थीटा बाई 2, 2 ऐसे कट हो गया, तो आपका x, y ऐसा आया मिड पॉइंट ऑफ x प्लस वाई, बराबर. अब मिड पॉइंट इज x प्लस वाई. आपका x है k sec square थीटा और आपका y है k tan square थीटा. एंड नाउ लुक एट दिस k sec square थीटा x माइनस y. k sec square theta minus k tan square theta, that is equal to 9. What is common? K common, sec square minus tan square, that is 9. And you guys are knowing sec square minus tan square, that is 1. Hence k equal to 9. Answer. ये 2 या 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा था, right? This is really a good question. Now, my dear students, if you have got doubt,